A good day to all of you. Today, I'm going to take up a lesson of 10th standard in English. In 10th standard, we have two textbooks. The prose textbook is called First Flight. It's a literature textbook, and the other textbook is the supplementary reader, and it's called Footprints Without Feet. Today, we are going to start with the first lesson in the First Flight textbook, that is A Letter to God. And this lesson is written by G.L. Fuentes. Now, G.L. Fuentes was born on July 11th, 1897 at the Canary Islands. He first went to sea and worked as a deck boy with his father at the age of 10. Deck boy माने क्या, जो शिप पे काम करते बच्चे, उसके फादर शिप पे काम करते थे, तो एक दिन वो भी चला गया फादर के संग काम करने के लिए. एज अ टीनेजर, आप सब लोग अभी टीनेजर्स हो, फ्रॉम 13 onwards, एज 13 to 19, okay? Fuentes worked on cargo ships and then went out of the Canary Island to Trinidad and Puerto Rico. He also sailed to the Spanish parts of Valencia and South America. He migrated permanently to Cuba at the age of 22. Now, Fuentes had a very bad habit. He was a cigar smoker. He used to smoke cigarettes, okay? Or all of you know, if you smoke cigarettes, it's very, very bad for health. And people get cancer because of cigarette smoking. है ना? So like this, Fuentes also, he was a cigar smoker. इसलिए he died from cancer in 2002. But वो जल्दी नहीं मरा. He died at the age of 105 years. 105 माने 1 century पूरी and 5 years bonus. तो भले सिगार पिया पर 105 years पर वो कैंसर से मर गया. So cancer is a really very, very horrible disease, and this is a problem he had, and he died from this. But his writing, now if you consider G.L. Fuentes की writings जो हैं, they are really fantastic. Whatever he has written and whatever his works he has given to us are all very lifelike, innocent, full of faith, and such sort of works he has given to all of us. अगर हम G.L. Fuentes की कोई भी स्टोरीज़ पढ़े या कुछ भी हम लोग उसने जो लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे, तो हम देखते हैं कि उसकी राइटिंग में एक बहुत इनोसेंस है जो बहुत मुश्किल है. इतना एक बच्चा लिखे तो वो इनोसेंट बन सकता है, पर एक बड़ा आदमी जब लिखता है उसको इनोसेंस उस स्टोरी में लाना इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट. एंड द फेथ, द मेन थीम ओवर हियर इज़ द फेथ अ पर्सन कैन हैव ऑन गॉड. बहुत बार देखा है हम लोग ने, अगर हम लोग बहुत खुश हैं तो हम लोग को भगवान याद नहीं आते, पर जब हम बहुत दुखी हैं और हम देखते हैं कि हमें किसी से भी हेल्प नहीं मिल रही है, तो हमारा लास्ट पर्सन जिससे हम लोग हेल्प मांगते हैं वो है भगवान, दैट इज़ गॉड. सो दिस स्टोरी ऑल्सो इज़ समवॉट सिमिलर. एंड जब इस स्टोरी में जो हीरो है इस स्टोरी में, उसका नाम है लेंचो, और वो है एक फार्मर. जब उसको कहीं से भी हेल्प नहीं मिलती तो वो गॉड की तरफ टर्न करता है एंड ही आस्क्स गॉड फॉर help. So now let me take you to the story, that is A Letter to God. भगवान को लेटर लिखना माने something really funny, है ना? So he has written a letter to God. We write letters to our friends, we write letters to our parents, we write letters to everyone around. We write letters to whom we really like also many times. We write letters to teachers, we write letters to the prime minister and so many people. But have you ever written a letter to God? है ना? So in this, if you look at the name of the lesson says A Letter to God. So letter to God माने something really strange, बहुत ही कुछ अलग तरह की story. So now I think we'll get on to the story, all of us, and let me explain the story to you. And in the end of the story, whatever
problems or anything which you did not understand or which you could not follow properly, you can comment and ask me later on. Okay, now let us start the story. Now in the picture you can see there's a house, the house, and this house was Lencho's house. This was the only house in the entire valley. पूरे वैली में सिर्फ एक ही घर था वहाँ पर, और वो था लेंचो का घर. एंड लेंचोज हाउस वॉज ऑन अ लो हिल. एक छोटी सी हिल पर उसका घर बना हुआ था. जैसे ही हम इस हिल पर चढ़ते, और उसका घर हिल के नीचे था और छोटा सा हिल ऊपर था. जैसे ही हम लोग हिल के ऊपर चढ़ते तो वहाँ से हम व्हाट ऑल वी कैन सी, वी कुड सी अ रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. उसने मकई की खेती करी थी. एंड देयर वर सो मेनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स in the whole valley, and whenever anyone went to the valley and looked at the flowers, they were looking so beautiful and the whole scene was very promising. The only thing which Lencho needed was a good harvest. कभी भी कोई भी फार्मर अगर कुछ भी प्लांट करता है, कुछ सोइंग करते हैं, सीड्स सो करते हैं, देन व्हाट ही वांट्स, कि वो सोचता है कि बहुत अच्छा एक फसल हो, बहुत अच्छी हार्वेस्ट हो, उसको मैं बेचकर खूब सारे पैसे कमा सकूं. सो दिस वाज आल्सो अगेन, लेंचो भी एक फार्मर था, तो ही थॉट द सेम थिंग. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर. डाउनपोर का मतलब क्या है? हैवी रेन. अब मकई की खेती तो कर ली थी और मकई के खेत अच्छे खासे बढ़ भी गए थे. अब लेंचो सोच रहा था कि देयर शुड बी अ गुड रेनफॉल और अ डाउनपोर. अगर रेनफॉल नहीं हुई तो कोई बात नहीं, एक अच्छा सा शावर माने लाइट रेन, इतना तो होना चाहिए. ऑलवेज ऑल फार्मर्स आर वेटिंग फॉर द रेनफॉल्स. रेन वाटर इज़ वेरी प्योर, इसलिए हार्वेस्ट के लिए वो और क्रॉप के लिए वो बहुत अच्छा है. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो पूरे दिन लेंचो ने आज क्या किया था? सिर्फ स्काई की तरफ देख रहा था. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्काई की तरफ देख रहा था कि कब बरसात आए, कब क्लाउड्स हो, और उसके लिए वो वेट कर रहा था. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. जैसे ही उसने देखा नॉर्थ ईस्ट में उसको थोड़े से क्लाउड्स दिखाई पड़े, तो एक लेडी थी वहाँ पर, वो खाना बना रही थी सबके लिए. ओके, एंड उसने उसको बोला कि आज तो बरसात होनी ही चाहिए. तो उस लेडी ने रिप्लाई दिया, हाँ, अगर भगवान चाहे तो बरसात ज़रूर होगी. अब घर में जो बच्चे थे, ओल्डर बॉयज़, जो बड़े बच्चे थे, वो सब लोग फील्ड्स में वर्क कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो लोग घर में, दे वर प्लेइंग नियर द हाउस एंड ऑल वर डूइंग देयर वर्क. एंड द वुमन कॉल्ड आउट टू देम एंड शी सेड, कम फॉर डिनर. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. Yes, जब सब बच्चे आ गए और सब लोग खाना खाने बैठे और लेंचो ने जैसा सोचा ऐसा हो गया. बड़े बड़े ड्रॉप्स ऑफ रेन गिरने लगे. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लेंचो देख रहा था, वहाँ पर खूब सारे क्लाउड्स, बड़े बड़े क्लाउड्स दिख रहे थे, और वो धीरे धीरे उन लोग की फील्ड्स की तरफ बढ़ रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. जब भी आपने देखा है रेनफॉल से पहले एयर की स्मेल कितनी अच्छी होती है, ऐसे ही बहुत ही अच्छी स्मेल एयर की आने लगी. द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. तो जैसे ही लेंचो बाहर गया घर से, तो उसने देखा कि बहुत बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स थे और कोई छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स थे. वो बहुत खुश हो गया और वो दौड़ कर वापस आया घर में, और उसने बोला, पता है, कॉइन्स गिर रही हैं. कॉइन्स रेन ड्रॉप्स को उसने क्या बोला? कॉइन्स गिर रही हैं आकाश से. बड़ी बड़ी वाली 10-cent कॉइन्स हैं और छोटी छोटी 5-cent कॉइन्स हैं. क्योंकि कॉइन्स क्यों? क्योंकि रेन ड्रॉप्स है तो हार्वेस्ट अच्छा होगा तो यू विल गेट अ गुड लॉट ऑफ मनी व्हेन यू सेल योर क्रॉप. इसलिए उसको वो रेन ड्रॉप्स अब पैसे और कॉइन्स की तरह दिख रहे थे.
With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. फिर वो बहुत खुश हुआ और बहुत सेटिस्फाइड था. उसने फील्ड की तरफ देखा और देखा कि पूरा फील्ड बहुत सारी बरसात के एक पर्दा उसके ऊपर गिर चुका था और बहुत सारी बरसात उसके फील्ड में हो रही थी और वो बहुत अंदर से उसका खुश हो गया. बट क्या हुआ अचानक? सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. अचानक से क्या हुआ? बहुत ज़ोर की आंधी तूफान आने लगा और उसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े आइस के पीसेस, जिसको हेल स्टोन्स कहते हैं और हिंदी में कहते हैं ओले और गुजराती में कहते हैं करा, दे स्टार्टेड फॉलिंग डाउन फ्रॉम द स्काई. एंड अब ये सारी जो हेल स्टोन्स हैं, दीज ट्रूली रिजेंबल्ड न्यू सिल्वर कॉइन्स. वो सिल्वर की कॉइन्स की तरह चमकती हुई गिर रही थी. द बॉयज़, जो बॉयज़ घर में थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. तो जो बॉयज़ थे वो दौड़ के बाहर गए और वो रेन ड्रॉप्स कैसे लग रहे थे? अब वो पर्ल्स की तरह, मोतियों की तरह चमक रहे थे. उन लोग ने एक बड़े बड़े डिशेस ले गए और उस डिशेस में वो लोग ने वो फ्रोज़न पर्ल्स की तरह, मोतियों की तरह जो रेन ड्रॉप्स, हेल स्टोन्स लग रहे थे, उनको कलेक्ट करके अंदर ले आए. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन. आई होप इट पासिस क्विकली. तो अब लेंचो को थोड़ा सा डर गया. उसने सोचा ये तो बहुत बड़े हेल स्टोन्स हैं, इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है मेरे फील्ड में. जल्दी से ख़त्म हो जाए ये हेल स्टोन्स तो अच्छा रहेगा. पर क्या हुआ? इट डिड नॉट पास क्विकली. फॉर एन आवर the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. उसने सोचा, लेंचो ने, कि ये ख़त्म हो जाए रेन. बट जो उसने सोचा वो नहीं हुआ और पूरे 1 आवर के लिए वो हेल स्टोन्स पूरे वैली पर, घर पर, कॉर्नफील्ड में, सब जगह बरसते ही रहे. और ऐसा लग रहा था कि पूरे फील्ड में सॉल्ट, नमक से कवर हो चुका है. इतने ज़्यादा होलस्टोन्स थे कि वो मिट्टी भी दिखाई नहीं पड़ रही थी वहाँ पर. नॉट अ लीफ remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. तब जब लेंचो ने देखा, जब ख़त्म हो गई रेनफॉल और हेल स्टॉर्म, सब कुछ ख़त्म हो गया, तब देखा कि सारे पूरे जहाँ वो फील्ड थी वहाँ एक भी पत्ता नहीं था और सारे जो भी लीव्स थे ट्रीज़ पर वो सब भी ख़त्म हो चुके थे, एक भी नहीं था. कॉर्न का फील्ड पूरा ख़राब हो चुका था, पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था. द फ्लावर्स सारे प्लांट्स में से निकल चुके थे और नीचे गिर पड़े थे. अब लेंचो का सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. Storm had passed का मतलब क्या? जब स्टॉर्म ख़त्म हो चुका था तब वो अपने बच्चों के संग, अपने बेटों के संग फील्ड के बीचम बीच गया और उसने क्या बोला? A plague of locusts would have left more than this. अब what is the meaning of plague of locusts? Plague of locusts का मतलब एक तरह का इंसेक्ट है, जो जब इंसेक्ट होता है उसको टिड्डी कहते हैं शायद. इट्स कॉल्ड टिड्डियाँ. सो दीज लोकस व्हेन दे फ्लाई एंड दे सिट ऑन द क्रॉप, वो सारा क्रॉप एक साथ खा लेती है. बहुत बड़े स्वाम में आती है. स्वाम मीन्स बहुत सारे लोकस एक साथ आते हैं. इतने सारे आते हैं कि हम लोग को दिन में सन दिखना बंद हो जाता है. इतने सारे एकदम से वो लोग क्रॉप पर बैठते हैं और क्रॉप सारा खाकर फिर से उड़ जाते हैं. तो उसने रेनफॉल को किससे कंपेयर किया? उसने बोला अगर एक प्लेग ऑफ लोकस आकर फील्ड पर बैठते तो भी थोड़ा बहुत क्रॉप तो बच जाता, पर ये हेल स्टोन्स की वजह से कुछ भी नहीं बचा है. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. तो उसने अपने बेटों को बोला इस साल हमारे पास कोई कुछ भी कॉर्न नहीं होगा. दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. All our work for nothing. There's no one who can help us. We all will go hungry this year. तो वो लोग वो रात उनके लिए बहुत ही सॉरोफुल, बहुत ही सैड वाली रात थी.
उन लोग ने सोचा अपने मन में, इतना हमने फील्ड्स में काम किया, दिन रात हमने एक कर दी, फिर भी अब हमारे पास कुछ नहीं है और पूरे साल हमारे पास कुछ नहीं होगा खाने के लिए ना बेचने के लिए। और हम लोग इस साल पूरे साल हम लोग हंग्री रहना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव नथिंग एल्स बट द कॉर्न। बट फिर क्या हुआ उसके बाद? But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. पर सबके दिल में एक होप थी। एक ही घर था वहाँ पर, उनके कोई नेबर्स नहीं थे जिससे वो लोग कुछ मांग के खा सकते या ले सकते, और अकेला उनका एक ही घर था उस वैली में। तो उन लोगों ने सोचा कि अब हमारे पास एक ही होप है, दैट इज़ हेल्प फ्रॉम गॉड। यस, सो भगवान के सिवाय और उनका अब कोई भी उद्धार नहीं कर सकता था। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो ने बोला, अब शांत हो जाओ, डोंट बी अपसेट। देखो, कुछ भी हो, आज तक कोई भी हंगर से तो नहीं मरा है, भूख से कोई नहीं मरा है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। All through the night, Lencho thought only of its one hope, the help from God, whose eyes he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. तो जब से वो छोटे बच्चे से बड़ा हुआ था, उसने अपने फादर से और अपने फ्रेंड से और जिससे भी वो जानता था उन सब से उसने एक ही बात सुनी थी कि अगर किसी ने हमको देखा है कि नहीं देखा हो, पर भगवान सबको देखता है और भगवान की आँखों में सबको एक ही व्हाट टू से, वन एज वन ओनली, गॉड ट्रीट्स एवरीवन एज वन पर्सन ओनली, एज वन। सो उसने सोचा कि मैं सिर्फ अब गॉड से हेल्प ले सकता हूँ। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो बहुत स्ट्रॉन्ग था, ऑक्स की तरह स्ट्रॉन्ग था, बैल जैसे जो बोलते हैं, जो फार्म में काम करते हैं, और वो पूरे टाइम अपने फार्म में एक एनिमल की तरह उसने काम किया था अपने फील्ड्स में। फिर भी कभी ना कभी उसने पढ़ना लिखना सीख ही लिया था। तो उसने सोचा अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो एट लास्ट संडे आया। संडे के दिन वो जैसे ही सुबह हुई वो उठा एंड ही स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर। और उस लेटर लिखने के टाइम उसने सोचा कि मैं ये लेटर खुद टाउन में ले जाऊंगा और वहाँ पर जो मेल बॉक्स है, जो पोस्ट ऑफिस के बाहर मेल बॉक्सेस होते हैं, अब इट्स जो पोस्ट जहाँ पर हम लोग लेटर्स पोस्ट करते हैं, ऐसे मेल बॉक्सेस होते हैं, उस मेल बॉक्स में मैं खुद ही वो लेटर वहाँ पर डाल कर आऊँगा, तो वो हमेशा और सही तरह से गॉड तक पहुँच जाएगा। तो उसने क्या लिखा लेटर में? गॉड, ही रोट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes because the hailstorm। और उसके बाद उसने डैश 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 करके छोड़ दिया। उसको पता था भगवान ने सब देख चुके हैं और भगवान को मालूम है हेल स्टॉर्म की वजह से मेरी फील्ड्स पूरी ख़राब हो गई है, मेरा क्रॉप पूरा ख़राब हो गया और मैं इस साल मेरे पास कुछ नहीं है, मैं और मेरी फैमिली दोनों इस साल हंग्री रहने वाले हैं, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो मैं गॉड से उसने बोला कि मुझे एक 100 पेसोज़, नाउ ऑल दीज आर पेसोज़ हो, रूबल्स हो, डॉलर्स हो, ये सब करेंसीज है ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। ओके, तो उसने कहा मुझे 100 पेसोज़ चाहिए ये पूरा साल निकालने के लिए, एंड मेरा फील्ड नेक्स्ट ईयर भी मुझे कौन चाहिए मेरे फील्ड में फिर से सो करने के लिए, सो माने मेरे फील्ड में उगाने के लिए मुझे फिर से कौन चाहिए रहेगा। तो मुझे आप 100 पेसोज़ का हेल्प कर दोगे तो मैं, मेरी फैमिली और मैं ये पूरा साल थोड़ा बहुत खा पी कर, और नेक्स्ट ईयर मेरे फील्ड के लिए कौन इतना तो होगा कि मैं नेक्स्ट ईयर फिर से अपनी फील्ड को सो कर सकूं। और उसके बाद उसने बहुत ही हैवी हार्ट से वो लेटर लिखा। फिर उस लेटर को उसने फोल्ड करके एक एनवलप में डाल दिया और एनवलप के ऊपर उसने एड्रेस में लिखा टू गॉड। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप।
put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box. उसका हार्ट बहुत ही दुखी था. उसने उस लेटर के एनवलप के ऊपर लिखा टू गॉड, और फिर वो टाउन में गया और वहाँ पर पोस्ट ऑफिस के पास गया, एक स्टैम्प लिया पोस्ट ऑफिस से, उस स्टैम्प को उसने लेटर पे चिपकाया और फिर उसने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया और फिर वो गया वापस अपने घर. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. तो जैसे ही the employees, उसमें से जो postman था, उसने वो लेटर निकाला और जब उसने देखा कि इस लेटर को कौन से एड्रेस पे भेजना है, तो वहाँ पर उसने क्या देखा? यस, उस लेटर के ऊपर लिखा था टू गॉड. और उसने जैसे ही वो टू गॉड देखा तो वो बहुत ज़ोरों से हंसने लगा और हंसते हंसते एंड ही शोड द लेटर टू गॉड टू द पोस्ट मास्टर. उसने बोला इतने साल हो गए मेरे करियर में पर आज तक मुझे ऐसा लेटर नहीं मिला जिसमें लिखा हो कि टू गॉड. एंड इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग. और वो हंस भी रहा था. अब वो पोस्ट मास्टर जो था, ही वॉज अ फैट एमिएबल फेलो. एमिएबल मीन्स फ्रेंडली मैन. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. जैसे ही पोस्ट मास्टर ने देखा इस लेटर पे लिखा है टू गॉड, तो वो भी हंसने लगा. पर थोड़ी देर हंसने के बाद वो तुरंत सीरियस हो गया. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." तो उसको लगा कि वो एकदम सीरियस हो गया और उसने सोचा कि वो आदमी कैसा होगा जिसको भगवान पर इतना ज़्यादा विश्वास हो. ऐसा आदमी है इस दुनिया में और उसने वो भी भगवान से बात करने की कोशिश करी है. सो इट मस्ट बी रियली समथिंग डिफरेंट काइंड ऑफ अ मैन. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. तो पोस्ट मास्टर ने सोचा अब किसी ने मेरे को भगवान का नाम लेकर लेटर भेज दिया है तो हम लोग को लेटर पढ़कर उसका कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर देना चाहिए. वो एक अच्छा आदमी था, द पोस्ट मास्टर. बट वेन ही ओपनड इट, it was evident that to answer, if he needed something more than goodwill, ink and paper. जैसे ही उसने पढ़ा लेटर उसको तुरंत पता चल गया कि लेंचो को क्या चाहिए था, 100 pesos. अब उसको पता था कि मुझे आंसर देना है तो मुझे इंक, पेपर और गुडविल के सिवाय भी दूसरी कोई भी चीज़ चाहिए. तो भी उसने सोचा कैसे भी कुछ भी करके मुझे ये आंसर देना ही है. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो उसने क्या किया? उसने देख लिया he wanted 100 pesos, so he asked his friends टू कंट्रीब्यूट समथिंग. अगर कोई ट्रबल में है तो हम लोग भी ऐसा करते हैं, हम सब फ्रेंड्स मिलकर, आप सब फ्रेंड्स मिलकर क्या करते हो, अगर किसी को कुछ चाहिए तो हम लोग उसके लिए पैसे कलेक्ट करके लेते हैं. किसी का बर्थडे है तो हम सब लोग उसके लिए कुछ गिफ्ट लेते हैं, तो हम लोग छोटा अमाउंट कलेक्ट करते हैं, 50 रुपीज़ या 20 रुपीज़, जैसा जो भी कलेक्ट करना है, और फिर हम लोग सब मिलाकर उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेते हैं. ऐसे ही इसी तरह से द सेम वे व्हाट द पोस्ट मास्टर डिड, ही आस्क्ड ऑल द एम्प्लॉयज़, सी ये एक लेटर है, ये एक आदमी है लेंचो, इसको था 100 pesos की ज़रूरत है क्योंकि उसकी फील्ड बिल्कुल बेकार हो चुकी है, उसके पास खाने के पैसे भी नहीं है, तो आप लोग कुछ ना कुछ इसके लिए कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा. तो ऑल द पीपल इन द पोस्ट ऑफिस, जो एम्प्लॉयज़ थे, वो लोग ने बोला ठीक है चलो हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा सब लोग देते हैं, और सब लोग ने थोड़ा थोड़ा पैसे निकाल के दिए एंड सम कलेक्शन सब लोग ने दिया. और फिर पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी में से भी थोड़ा सा पार्ट निकाल दिया और उसने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से उन सबको भी बोला कि मुझे चैरिटी के लिए पैसे दो, और सब लोग ने मिलकर कुछ एक अमाउंट कलेक्ट किया. एंड दिस वॉज एन एक्ट ऑफ चैरिटी. चैरिटी माने क्या? काइंडनेस, टू गिव टू समबडी हु इज़ इन ट्रबल.
It was impossible for him to gather together the 100 pesos. अब 100 pesos एक उस टाइम पर जब ये स्टोरी लिखी गई थी, इट वॉज अ वेरी बिग अमाउंट, क्योंकि जस्ट इमेजिन 100 pesos से एक आदमी को पूरे साल अपने फैमिली को खाना खिलाना है, और उसके बाद थोड़ा उसको उसमें से फील्ड में कॉर्न सो करने के लिए भी उसके लिए भी उसको चाहिए। तो 100 pesos ईजिली गैदर तो नहीं कर सकते। सो वॉट एवर वॉज पॉसिबल वो पोस्ट मास्टर ने गैदर किया। एंड उसने जब गैदर किया, एट लास्ट उसके पास थे 70 pesos, उसको गैदर कर पाया। और उसने सोचा चलो कुछ नहीं तो 70 pesos ही हम लोग लेंचो को हेल्प कर देते, इतना तो हेल्प करें जितना हमारे पास है। So he was able to send the farmer only a little more than half. 100 pesos का half 50. 70 pesos माने more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो उसने अब क्या किया, एक एनवलप लिया, उसमें 70 pesos रख दिए और एक पेपर लिया, उस पेपर में सिर्फ गॉड एक सिग्नेचर, एक ही वर्ड लिखा उसने और कुछ भी नहीं लिखा, और उसने उस लेटर को बंद कर दिया और उसके ऊपर उसने लेंचो का नाम लिख दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर। पहले संडे लेंचो ने लेटर पोस्ट किया था, नेक्स्ट संडे लेंचो थोड़ा जल्दी से पोस्ट ऑफिस आ गया। And he asked if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from his office. तो जब लेंचो आया उसने पूछा क्या मेरे लिए चिट्ठी है, कोई लेटर है? तो पोस्टमैन ने क्या किया, खुद ही जाकर लेंचो को वो लेटर दे दिया। नेचुरली उसको पोस्ट करता तो वो लेटर तो कभी भी लेंचो के पास नहीं पहुंचता, क्योंकि उसमें कोई एड्रेस ही नहीं था, नेचुरली इजंट इट। तो जब अच्छा हुआ लेंचो पोस्ट ऑफिस आ गया और उसने अपना लेटर मांगा तो उसको लेटर मिल गया, और अंदर से पोस्ट मास्टर बहुत खुश हो रहा था कि उसने बहुत अच्छा काम किया, एक ट्रबल्ड पर्सन को उसने पैसे दे सका। अंदर से ही वॉज हैप्पी विथ हिज गुड डीड। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. जैसे ही लेंचो ने लेटर खोला उसको ज़रा भी सरप्राइज़ नहीं हुआ, उसको इतना ज़्यादा फेथ था गॉड पर, उसने ज़रा भी सरप्राइज़ नहीं हुआ कि पैसे अंदर हैं, और उसको मालूम था गॉड उसको ज़रूर हेल्प करेंगे। गॉड सबका हेल्प करते हैं कोई ना कोई तरह से, तो उसकी भी हेल्प करने वाले थे। बट ही बिकेम वेरी एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जैसे उसने पैसा निकाला, काउंट किया, तो बहुत गुस्सा हो गया। वाई, क्यों गुस्सा हुआ? नेचुरली 100 pesos मांगे, मिले कितने? 70। तो उसको गुस्सा ही आ जाएगा, भगवान ने उसकी पूरी विश तो पूरी नहीं करी ना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो उसने सोचा मन में कि गॉड कभी भी कोई मिस्टेक तो कर ही नहीं सकते, और मैंने गॉड से 100 pesos मांगे तो वो मुझे 100 ही देंगे। गॉड ऐसे पर्सन है, ऐसा एक है चीज़ जो किसी से भी कभी भी धोखाधड़ी नहीं कर सकता। तो ही न्यू कि भगवान ने तो ये मिस्टेक नहीं किया है, मिस्टेक ज़रूर किसी और ने किया है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो वो पोस्ट ऑफिस के पास ही खड़ा था, तुरंत वो वहाँ गया और उसने बोला मुझे पेपर और इंक दो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, तो वहाँ पर एक राइटिंग टेबल थी जिस पे सब लोग स्टैम्प चिपकाते, लिखते, कुछ भी करते। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ? जब कोई गुस्सा होता है तो क्या करता है, आंखों के ऊपर उसके एक रिंकल्स आ जाते हैं गुस्से से, उसका मुंह अलग तरह से रिंकल से भर जाता है। तो ही वॉज ऑल्सो एंग्री नाउ, caused by the effort he had made to express his ideas. When he finished, तो उसने पेन और जो इंक है और पेपर, उस टाइम में पेन नहीं हुआ करते थे, इंक में सब लोग डुबो कर लिखते थे, सम टाइप ऑफ अ पेन दे यूज्ड टू हैव। सो उसने वहाँ पर एक लेटर लिख दिया, और लिखने के बाद व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। जैसे ही उसने लेटर लिख दिया, एनवलप में डाल दिया, अब एक स्टैम्प के लिए विंडो की तरफ गया, और स्टैम्प के पीछे गम होता है जिसको थोड़ा सा हम लोग जीभ से थोड़ा सा गीला करें तो वो गम चिपक जाता है एनवलप पे। अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन affixed माने लगा देना, टू द एनवलप
विथ द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, जोर से उसने उस स्टैम्प को एक ब्लो मारा और वो स्टैम्प एनवेलप पर चिपक गया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब सब जो भी था पोस्ट ऑफिस में, सब लोग देख रहे थे क्या हो रहा है. सबको पता था लेंचो आया, 70 पेसोस गिन लिए, सबको मालूम था लेंचो के सिवाय वहाँ क्या हो रहा है सबको पता था. और जैसे ही लेंचो ने लेटर लिखकर वो मेल में जो मेल बॉक्स है उसमें डाल दिया, तुरंत पोस्टमास्टर खुद ही दौड़ गया और उसने उसको लेटर को तुरंत ले लिया और उसने उसको खोल दिया और क्विकली उसने उसको पढ़ना शुरू किया. क्या लिखा हुआ था लेटर में? इट सेड, गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड यू ओनली 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. और लास्ट में साइन किया था उसने लेंचो. अब नाउ व्हाट हैपेंड हियर? जब पोस्ट मास्टर ने लेटर खोला तो क्या देखता है? लेंचो ने लिखा है, मैंने आपको 100 पेसोस मांगे पर उसमें से सिर्फ 70 पेसोस ही मेरे पास आए और मेरे को आपने मेल के थ्रू, ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू तुमने भेजा था मुझे. इसका मतलब 30 पेसोस उसमें कम है. इसका मतलब ज़रूर जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ही वो 30 पेसोस गायब कर दिए. और एक्चुअली मेरे को जो 100 पेसोस है, अगली बार जब भी आप मेरे को भेजना 100 पेसोस तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के थ्रू मत भेजना. और उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बताया अ बंच ऑफ क्रुक्स. क्रुक्स माने चीटर्स, ऐसा. और इस तरह से हम लोग देखते हैं लेसन में कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, इन स्पाइट ऑफ द पोस्ट मास्टर हेल्पिंग हिम, उसको क्या रिवॉर्ड मिला? ही वॉज कॉल्ड अ बंच ऑफ क्रुक्स. ओके, तो इसमें दो चीज़ें वी कैन सी हियर. नाउ लेट अस कम टू द एंड ऑफ द लेसन हियर. और हम लोग देखते हैं इस लेसन हम लोग को 3 चीज़ें सिखाता है. फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग इट टीचेस अस? इट शोज लेंचोज फर्म फेथ इन गॉड. लेंचो भगवान में पूरा विश्वास है लेंचो, तभी वो लेटर लिख रहा है. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. एंड उसको जो फेथ है उसको कैसा रिवॉर्ड मिलता है फेथ से? कि उसको हेल्प तो ह्यूमन बींग्स करते हैं पर वो ह्यूमन बींग्स को ही फॉल्ट में डाल देता है. सेकेंड चीज़ क्या दिखाता है? इट शोज़ द अटर इनोसेंस ऑफ द फार्मर. फार्मर कितना इनोसेंट था लेंचो, कि उसने भगवान को चिट्ठी कितने फेथ से, कितनी इनोसेंस से लिखी थी कि उसको पता था कि गॉड विल हेल्प हिम. एंड द थर्ड message the lesson gives us that sometimes even your generosity is not recognized. हम लोग अगर किसी को हेल्प करते हैं पर वो हेल्प जिसको हम लोग कर रहे हैं उसको वो हेल्प के बारे में उसको समझ ही नहीं आता है. सो मैनी टाइम्स हम लोग बहुत सारी, एक हिंदी में कहावत है, नेकी कर और कुएं में डाल. सो दैट इज़ इट. अगर आपने किसी को हेल्प किया, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्सन. आपने हेल्प कर दिया, आपने अपना काम कर दिया, दैट्स ऑल. एंड गॉड हैज सीन यू हेल्पिंग, सो आप भगवान की आंखों में तो आपका रजिस्टर हो गया हेल्प. ओके, so you may not get sometimes any credit for your generosity and kindness, and you might be misunderstood also, and you might be called as a bunch of crooks also. बहुत बार क्लास में भी ऐसा होता है, हम लोग बहुत सारे बच्चों को हेल्प करते हैं, कुछ करते हैं उनके लिए, पर लास्ट में वो लोग हमारा कंप्लेंट टीचर को कर देते हैं. So that way this is the lesson, a letter to God, very innocently and written with full faith by G.L. Fuentes. Thank you for today.